السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں سعدیہ ظفر، میں ہوں محمد دانش اور میں ہوں ایمن چوہدری۔ سب جان چکے بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے کے پی حکومت گرانے نہ گرانے کی قیاس آرائیاں، حکومتی سطح پر ملاقاتیں۔ علی امین گنڈاپور بھی ڈٹ گئے، کے پی حکومت گرانے اور نہ گرانے کی قیاس آرائیاں۔ وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک اور بیان داغ دیا۔ اب کی بار اپنی سیاسی توپوں کا رخ گورنر خیبر پختونخوا اور اپنے سیاسی حریف فیصل کریم کنڈی کی جانب بھی رکھا۔ گوسل کے الیکشن تو جیت نہیں سکتا، تو حکومت گرائے گا۔ اس کا میں نے نیا نام رکھا ہے چباتا، پہلے اس کا نام تھا ویلا منڈا، آگے بن گیا چباتا۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی اپنی سیاسی پوزیشن واضح کر دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا میں بحران پیدا ہو۔ گورنر کے پی کی وزیراعظم سے ملاقات کو سازش کہنا درست نہیں۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، فی الحال ایسی کوئی تجویز اعلیٰ سطح پر زیر غور نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے کے پی حکومت گرانے کا نہیں کہا۔ پی ٹی آئی کی بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہے تو کر لیں، مذاکرات جب بھی ہوں گے سیاسی قیادت کے درمیان ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشورہ بھی دے دیا۔ پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن خود ہے، اس کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر ہے۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور رات کو خواب دیکھتے ہیں اور دن کو کہتے ہیں یہاں گورنر راج لگ رہا ہے، ان کے ذہن پر گورنر سوار ہے، عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران سیز فائر میں وزیر اعظم کا بڑا کردار ہے، ایران سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف، ان میں ایک میزائل میں کہیں پہ کوئی نمبر میں فائر کرتے ہوئے کچھ فرق آ گیا۔ ہمیں یہ فکر تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے۔ اللہ کی طرف سے کیا مدد آئی، وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا۔ بھارت نے ایک بیس کے اوپر 11 کے قریب میزائل فائر کیے۔ آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان، کوئی بیس کے آگے گرا، کوئی بیس کے پیچھے گرا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم کے مہینے میں جو امن و امان، جو باقی ساری چیزیں، وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب کے پی کے میں جا کے وہاں کے علماء کرام کو انگیج کریں، خاص طور پہ اس علاقوں میں جہاں پہ یہ دہشت گردی زیادہ ہے۔ یہ دہشت گردی صرف ایک صورت میں ختم ہوگی کہ اگر وہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد نہ کریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی 26 اپوزیشن ارکان کی پکی چھٹی کرانے خود پہنچ گئے۔ ملک احمد خان نے اپوزیشن ارکان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ ریفرنس میں غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابے اور بد نظمی پر کارروائی کی سفارش۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ 1.5 سال تک تحمل کا مظاہرہ کیا، گالیاں اور جمہوریت نہیں، یہ دشمنی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی 26 اپوزیشن ارکان کی پکی چھٹی کرانے کے لیے خود الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے۔ ملک احمد خان نے اپوزیشن ارکان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ ریفرنس میں غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابے اور بد نظمی پر کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے سیاحوں کو دریا میں جانے سے روکا مگر بات نہ مانی گئی۔ کمشنر مالاکنڈ نے سوات حادثے کی رپورٹ پروونشل انسپیکشن ٹیم کو جمع کرا دی۔ نرائے سوات کنارے 4 سے زائد غیر قانونی عمارتیں گرا بھی دی گئیں۔ ریسکیو بذات خود ایک اسپیشلائزڈ آپریشن ہوتا ہے جس میں اس ہیلی کاپٹر کے اندر وہ ساز و سامان بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بچا سکے۔ ہمارے پاس یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے اور یہ سفر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذرا سا موسم بھی خراب ہو تو اس میں وہ سفر نہیں کر سکتا۔ سوات میں سیاحوں کے ڈوبنے کے واقعے کے بعد صوبائی انسپیکشن ٹیم کو کمشنر مالاکنڈ کی جانب سے رپورٹ جمع کرا دی گئی، جس کے مطابق معمول سے زیادہ بارش کے باعث درجہ سوات میں خواجہ خیرہ کے مقام پر پانی کی سطح 77,782 کیوسک تک پہنچ گئی۔ پانی کا رخ تبدیل ہونے پر حادثے کے مقام پر پانی کی سطح کم تھی، جس کی وجہ سے سیاح وہاں موجود تھے۔ متاثرہ سیاح 8:31 پر ہوٹل پہنچے اور 9:31 پر دریا میں گئے۔
रिपोर्ट के मुताबिक होटल सिक्योरिटी गार्ड ने सियाहों को दरिया में जाने से रोका, लेकिन वो होटल के पिछली तरफ से दरिया में चले गए। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर जाए वक़ुआ पहुँचे। 17 पस से सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सानेहा सवात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में 40 से जायद इमारतें गिरा दी गई है। तजावजात के खिलाफ मजीद ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया। एहतिशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशइयों ने खोखला कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। तरक्याती मंसूबों का मटीरियल भी दिन दहाड़े चोरी होने लगा। नशई अफराद ने पुलों को खोखला करना मिशन बना लिया। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। साइट हबीब बैंक पुल, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पुल, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद और लांडी पुल से हिफाजती रेलिंग्स, नालों की छत का सरिया, पोल और जेरे ज़मीन केबल्स की चोरी जारी है। थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, शहर में काम वाम हो जाते हैं गलती से, वो भी इनका सत्यानाश कर देते हैं। बहुत बड़ा खतरा है, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए। और तो और नशे के आदि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस मंसूबे के मटेरियल पर भी दिन दिहाड़े हाथ साफ कर रहे हैं। शहर का हुलिया मेयर साहब अब तवज्जो दें इस बात पे। कोई रोकने दे, कोई देखने वाला नहीं है। चोरी की खुलेआम वारदातों पर पुलिस और मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है पुलों की हिफाजत का ठोस इंतजाम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में लाया जाए। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गया। आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला हुकाम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। महमूद खान अचकज़ई की कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कौमी हुकूमत बनाने के अलावा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, मुत्तहिद होने का वक्त है। ईरान इसराइल तनाज़े की बात की जाए तो ईरानी हमलों में इसराइल को $1 अरब 47 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बनी हैं। 10,000 इसराइली बेघर हुए, होटल्स में मुकीम हैं। ईरानी हमलों में इसराइल को $1 अरब 47 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। इजरायली फौज का लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में कार पर ड्रोन हमला। इजरायली ड्रोन हमले की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। इजरायली फौज का लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में कार पर ड्रोन हमला। वेलकम बैक। फाइनेंस बिल केपी कानून बन गया। गवर्नर केपी ने दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल पर दस्तखत के साथ ही हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की शरह में कमी बेशी का इत्तलाक हो गया। हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरामीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर में हादसात के बाद डायरेक्टर जनरल PHA का कहना है कि गैर महफूज बोर्ड्स, होर्डिंग्स और दीगर खतरनाक ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब। शहरों में लगे बिलबोर्ड्स इंसानी जानों के लिए खतरनाक। गुज़श्ता दिनों लाहौर में आने वाली आंधी में बिलबोर्ड्स गिरने की कई वाक़यात हुए। शहरा कोट बंद रोड पर एक भारी बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार ख़ानदान पर गिर पड़ा। इसी तरह शादमान फ़ेज़ 1 में एक साइन बोर्ड गिरने से राहगीर ज़ख्मी हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में इस नौइयत के दीगर हादसात की इतलात भी मिली। इन वाक़यात पर रद्दअमल देते हुए डायरेक्टर जनरल PHA का कहना है लाहौर में नस्ब तमाम साइन बोर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का अज़-सर-नौ मुआयना शुरू कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि लाहौर में नस्ब हर किस्म के साइन बोर्ड, शेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर 3 माह बाद हिफाजती सर्टिफिकेट लेना लाजमी करार दिया जाए। गवर्नमेंट को इक़दाम लेना चाहिए इस चीज़ का कि ये साइन बोर्ड ये ना लगाए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ चाहे, दुनिया के साथ चले और इनका कुछ सद्देबाब करे। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। वासा, रेस्क्यू 1122 और ज़िली इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
वाइल्ड लाइफ पार्क झंग से कीमती मादा हिरन चोरी होने का मुकदमा दर्ज। डीजी वाइल्ड लाइफ ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है काले हिरन की कम अज कम मालियत 2 लाख रुपए है। जराये के मुताबिक चोरी होने वाले हिरनों में 3 मादा और 1 नर शामिल है। और इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है मर्द हो या औरत, मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। फैसले का इत्तलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। अब ये खबर 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वज़ीर आज़म ने 5 और 6 जुलाई को सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में 150 साल कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों की तज़ीन और आश जारी है। कदीमी ताजियों के जुलूस 10 मुहर्रम को बरामद होते हैं। उस्ताद और शागिर्द के ताजियों की तारीख और बनावट के हवाले से बता रहे हैं हामिद चौधरी। मुहर्रम उल हराम में ताजियों के सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं, मगर उस्ताद और शागिर्द के ताजिए कदीम तरीन होने की वजह से मुनफरिद हैसियत रखते हैं। उस्ताद का ताजिया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया। इस ताजिए को सागवान की लकड़ी से 23 साल में तैयार किया गया, जिसका वजन 100 मन है। इसकी बनावट में किसी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी तज़ीन और ऐश का काम हो रहा है। 9 का दिन गुजार के रात 10 को ज़ियारत के लिए हम रख देते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन आते हैं जो ज़ियारत करते हैं, और ये हमारी पुश्त में ये 5वीं लाइसेंसदारी है। शागिर्द के ताजिए को जलने के बाद दोबारा 1945 में बनाया गया। इसकी 7 मंजिलें हैं। इसकी तज़ीन और आइश की जा रही है। इन ताजियों को 100 अज़ादार मिलकर उठाते हैं। 18वीं सदी के कारीगरों ने शागिर्द के ताजिए को बनाते वक्त भी किसी कील का इस्तेमाल नहीं किया। ये आज फिटिंग होगी इसकी 2 दिन में तकरीबन। इसकी 7 मंजिलें हैं। ये 33 फुट लंबाई है, 10 फुट चौड़ाई है और इसका 120 मन वजन है। सुनहरी रंग के उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजिए 20 फुट तक बुलंद होने की वजह से अपना सानी नहीं रखते। दोनों ताजिए तज़ीन और आइश के बाद ज़ियारत के लिए रखे जाएंगे। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। खबर खेल के मैदान से। भारत ने हॉकी एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस दे दी है। भारत की वजारत खेल का कहना है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में किसी को शिरकत से नहीं रोक सकते। कौमी टीम के कप्तान और हेड कोच का एशिया हॉकी कप हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने का मुतालबा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि एशिया कप में शिरकत के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर दीन मोहम्मद 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दीन मोहम्मद ने 1995 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता था। रेसलर दीन मोहम्मद की नमाज जनाजा रात 10 बजे बाटापुर लाहौर में अदा की जाएगी। और पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले लिवरपूल के 28 साल फुटबॉल स्टार डियागो का कार हादसे में हलाक हो गए। डियागो ने लिवरपूल की प्रीमियर लीग, FA कप, लीग कप के जीत में अहम किरदार अदा किया था। 28 साल डियागो शादी गुज़श्ता माह 28 जून को हुई थी। हादसा स्पेन के शहर ज़मोरा में पेश आया, जिसमें उनके साथ उनके भाई आंद्रे भी जान की बाजी हार गए। डियागो ने पुर्तगाल नेशनल टीम के साथ से 49 मैचेस खेले। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोन पर तवील राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। रूसी सदर ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन में अपने अहदाफ से पीछे नहीं हटेंगे। कराची शहर में टैंकर के जरिए पानी की फराहमी इतवार तक बंद। शहरी को शदीद मुश्किलात। इतवार तक वाटर कॉरपोरेशन ने तमाम सरकारी हाइड्रेंट से पानी की फराहमी बंद कर दी। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है शहर में 7 सरकारी हाइड्रेंट्स चलते हैं। पुलिस टैंकर्स पकड़ रही है। हज़ारों की तादाद में शहरी टैंकर्स के जरिए पानी हासिल करते हैं। कराची शहर में टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी इतवार तक बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वाटर कॉरपोरेशन ने तमाम सरकारी हाइड्रेंट से पानी की फराहमी बंद कर दी। ओमानी बाइकर्स का वफ्द पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की परेड देखने वाहगा बॉर्डर पहुंच गया। पुरजोश नारों और रेंजर्स की परेड देखकर मेहमान बाइकर्स हैरान रह गए।
बेस कैंप में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर फटने से गैर मुल्की सयाह खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता शब 4 बजे के करीब पेश आया। चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की सयाह खातून को लाउशावा ऑक्सीजन गैस फटने से हलाकत हुई, जबकि मरहुमा क्लारा अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुंची थी। 15 दिन होटल में क़याम पजीर रहीं और 16 जून को बॉर्डर बेस कैंप की तरफ जाना हुआ उनका, जहां पर ये वाक़या पेश आया। कैंप में 1 और 2 के दौरान ट्रैकिंग में अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।